हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? होप यू आर फाइन. द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टराइजेशन, एक्सरसाइज 6C, and today we will do the factor of by grouping of the term. By grouping of term means we have given some similar term, but they are in this order. So first of all, we will take the similar term with together, and then we will take some common quantity. So let us see the question. First is exercise 6C. Question number first is factorize ax square plus by square plus bx square plus ay square. So here, if we take ax square and bx square together, then these are the two suitable terms for factorization. Similarly, if we take dy square and ay square together, then again these two terms are suitable for factorization. So when some terms are given and some suitable terms if we can take together, then this is known as factorization by grouping of suitable terms. So second step, ax square plus bx square plus by square plus ay square. In first two terms, we can take common as x square. So if we take x square as common, then here a plus b. And similarly, if we take y square as common, then b plus a. अब देखिए, a plus b is equals to b plus a because addition is commutative. So this is x square into a plus b plus of y square into a plus of b. Now a plus b can be taken as common. So a plus b if we take common, then here will be x square plus y square. So this is the factorization of grouping by suitable term. Second question. Question number second. Second is my plus mz plus mz plus and y. So here see, variable are y and z. So we can take my and ny together, nz and nz together. So this is my plus ny and this is nz plus mz. From first two term, what we can take common? Y we can take common. So if we take y as common, then m plus n. Here, if we take z as common, then n plus m. Now, n plus m and m plus n are क्या है? Similar term. So, simply, if we write y into m plus n plus of z into m plus n, then this m plus n can be taken as common. So, m plus n if taken as common, then y plus z will be your second factor. So, this is your answer. So, hope these two questions are clear. Please pause the video note down. Next, question number 3. Question number 3 is AB minus 5C plus 5 of A minus of BC. So what we can take here? देखिए, so AB and here 5A. So in these two terms, if we take together, then AB plus 5A minus 5C minus of BC. So here we can take A as common. So if we take A common, then B plus 5 here minus of C if we take common, then here will be 5 and B. Now again see, B plus 5 can be taken as common. So B plus 5 into A minus C, this is your factor. समझ में आ गया? Then question number 4. Fourth question is
एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए एक्स माइनस ऑफ बी एक्स. अगेन सी, देखिए दिस वन इज द एक्स स्क्वायर एंड माइनस ए एक्स, ए बी एंड बी एक्स. सो इफ वी टेक x as कॉमन, देन देखिए x स्क्वायर में से x कॉमन लिया, x माइनस ऑफ a हियर एंड a b and माइनस b x में से अगर मैं प्लस ऑफ b कॉमन लेता हूं, देन प्लस ऑफ b कॉमन लेने पर ये क्या हो जाएगा, a माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. अब देखिए यहाँ माइनस a प्लस x है, यहाँ प्लस a माइनस x, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो x into x minus a minus of b कॉमन लेंगे तो ये x minus a हो जाएगा. Now you can take common as x minus a, so x minus a into x minus b. This is your required factor. Then question number 5. Fifth is write ab square minus bc square minus of AB plus of C square. So again we need to take suitable term first together. C. देखिए क्या ले सकते हैं, AB square and AB we can take together and BC square and C square we can take together. So पहले लिखेंगे अपन AB square minus of AB then minus of BC square plus of C square. अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, AB अपन कॉमन ले सकते हैं, तो AB कॉमन लेंगे तो B माइनस 1, यहां पर अपन क्या करेंगे प्लस ऑफ C स्क्वायर कॉमन लेंगे, C स्क्वायर तो आएगा माइनस ऑफ B प्लस ऑफ 1. आप देखिए यहां से माइनस अपन बाहर निकाल लेते हैं तो AB इंटू B माइनस 1 माइनस ऑफ C स्क्वायर तो प्लस ऑफ B माइनस ऑफ 1. Now again b minus 1 we can take as common, so b minus 1 into ab minus of c square. This is your answer. So hope question is clear. देखिए next question. Question number 6 is question number 6. 2xw minus of 3 minus of 6x plus of w. Okay, so here this is 2xw and this w we can take together and this minus 3 and minus 6x we can together. So 2xw plus of w minus of 3 minus 6 of x. What we can take here common, w if we take common then 2x plus of 1, यहाँ minus of 3 अगर अपन कॉमन ले तो क्या बचेगा plus 1 plus of 2x. Now see 2x plus 1 1 plus 2x, addition is commutative, so these are the two similar terms. So 2x plus 1 into w minus of 3, this is your answer. Then seventh question. So seventh question is 54 x plus 10 of y minus 12 xy minus 45. Again see which term are similar. देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 54 x, this is the 54x and this is 12xy. Okay, 12xy. So and this one is only 45. So what we can take y by term अपन साथ में ले सकते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे 54x minus 45 प्लस ऑफ 10y माइनस 12xy. अब देखिए यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटे, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 9, तो ये कितना हो जाएगा 6 of x minus of 5
और यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2y प्लस ऑफ 2y, 2y कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 5 और यहां बचेगा माइनस ऑफ 6x, माइनस ऑफ 6x। ओके, यहां 6x माइनस 5, यहां 5 माइनस 6x है, तो अपन क्या करेंगे अगले टर्म में यहां से माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो 9 इंटू 6x माइनस 5 माइनस 2y into 6x minus 5. Now this 6x minus 5 can be is taken common. So next will be 6x minus 5 into 9 minus 2y. This is your 9 minus 2y. Okay, this is your answer. Then eighth question. Eighth question is m cube plus 4m plus 5m square plus of 20. See, first make the group of suitable term. So see what we can take, m cube and 5m square, 4m and 20. So m cube plus 5m square together plus 4m plus of 20. So if we take m square as common, then here m plus 5, यहां पर अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो m plus of 5. Now m plus 5 can be taken as common, so m plus 5 into m square plus 4. So hope the question is clear. चलिए last question, pause the video, note down. So last question number 9 is twice axy square plus of 10 of x plus of 3ay square plus of 15. Okay, now first of all क्या आर्टिकल चल रहा है अपना, फैक्टराइजेशन of some expression using or making group of suitable term. तो सबसे पहले suitable term कौन कौन सी है देखें, यहां 2axy स्क्वायर को अपन 3ay स्क्वायर के साथ में लेंगे और 10x को किसके साथ में लेंगे, 15 के साथ में। देखें तो क्या आ जाएगा, और अगर मैं सिंपल देखिए तो इन दोनों में 2axy स्क्वायर प्लस 3ay स्क्वायर प्लस ऑफ 10x प्लस ऑफ 15, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, a एंड y स्क्वायर, तो ay स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 3, क्योंकि ay स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया। देखिए यहां पर अपन क्या लेंगे, अगर अपन 5 कॉमन ले तो 2x plus of 3. Now 2x plus 3 can be taken as common, so 2x plus 3 into ay square plus 5, that's your answer. So this is the factorization of some algebraic expression taking suitable term in particular group. So next is factorization using identities. Now we will do some factor using identities. So सबसे पहले क्या लिखेंगे, factorization by identities. देखिए क्या बेसिक आइडेंटिटी है, सबसे पहले स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू टर्म एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म। सबसे पहले जो आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी, वी हैव गिवन टू टर्म
A and B, and we have to find the square of A plus B whole square. A plus B whole square means we have to simple multiply A plus B into A plus B. Okay, अगर पावर 2 है तो A plus B को A plus B से मल्टीप्लाई करो, दो बार मल्टीप्लाई करूंगा. अगर पावर 3 है तो A plus B into A plus B into A plus B. तो A plus B whole square बराबर A plus B into A plus B. Now first I will multiply A with A, then A with B, then B with A, and then B with B. So in this, देखो A into A square plus A into B, AB, फिर B into A, B into B square. Okay? अब देखो AB और BA एक ही है because multiplication is commutative. तो अपन क्या लिख देंगे इसको? A square plus AB plus AB plus B square. अब AB और AB कितना हो जाएगा? A square plus 2AB plus of B square. तो ये आपके पास आइडेंटिटी आ गई कि A plus B का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? A square plus twice of AB plus of B square. So इसको वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो एक टर्म A है, दूसरी टर्म B है, दो टर्म के सम का होल स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर. सो दिस इज योर आइडेंटिटी. A plus B होल स्क्वायर बोले तो A plus B का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? A square plus 2AB plus B square. जहां A means फर्स्ट टर्म, B means second term. तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट टर्म into second term into second term का होल स्क्वायर. Okay, so A plus B whole square is A square plus 2AB plus of B square. This is the first identity. Now second identity, A minus B whole square. That is A minus B whole square means A minus B will be multiplied with A minus B. Now पहले क्या करेंगे? A को मल्टीप्लाई करेंगे A से A स्क्वायर, फिर A को मल्टीप्लाई करेंगे B से तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ AB, फिर माइनस B को A से तो माइनस BA, फिर माइनस B को माइनस B से तो प्लस B स्क्वायर. तो आपके पास आया A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस ऑफ B स्क्वायर. दिस इज A माइनस B का होल स्क्वायर. ये दूसरी आइडेंटिटी है. So A minus B whole square is equals to A square minus 2AB plus of B square. इसको वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? A minus B का मतलब A कोई फर्स्ट टर्म है, B कोई सेकंड टर्म है, जिसके डिफरेंस का होल स्क्वायर निकालना. तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर बराबर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ट्वाइस इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का whole square. So this is the second identity. Okay, so the square of sum of two term and square of difference of two term. Now तीसरी identity, ये second identity की third identity है. If we have to find the product of A plus B into A minus B, then it will be equals to A square minus B square. कैसे आया? देखिए लेफ्ट में पहले क्या करूंगा मैं? A को मल्टीप्लाई करूंगा A से तो A स्क्वायर, फिर A को मल्टीप्लाई करूंगा B से माइनस ऑफ AB, फिर B को मल्टीप्लाई करूंगा A से तो प्लस ऑफ AB, फिर B को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस B से माइनस B स्क्वायर. देखो माइनस AB प्लस AB बोथ आर द सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी. तो क्या बचा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. और राइट हैंड साइड तो यही तो लाना था अपने को, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. सो आपकी तीसरी आइडेंटिटी क्या आई बेटे? कि सम ऑफ टू टर्म इनटू डिफरेंस ऑफ टू टर्म किसके बराबर होगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर. सो दीस थ्री आइडेंटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, and on the basis of these three identity we will do the some questions. So
let's see the next exercise. Exercise 6D. Exercise 6D. Question number 4. Using suitable identities, state whether or not the expression is a trinomial square. ट्राइनोमाइल स्क्वायर का मतलब टू टर्म के सम का होल स्क्वायर जो एक्सपांशन आता है दैट इज नोन एज ट्राइनोमाइल स्क्वायर। ट्राइनोमाइल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी होल स्क्वायर को अगर मैं ओपन करूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज परफेक्ट ट्राइनोमाइल स्क्वायर ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, ऐसे ही a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या है? ट्राइनोमाइल स्क्वायर ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो अब अपने को देखना है कि यहाँ ट्राइनोमाइल स्क्वायर परफेक्टली कौन कौन सी टर्म है। तो पहला क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस ऑफ 4b स्क्वायर। अपन इसको क्या लिख सकते हैं बेटे? आपको क्या लिखना है कि फर्स्ट टर्म a का होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू यहां 4b को क्या लिख सकता हूं? 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखो फर्स्ट टर्म का रूट क्या है? a, तो 2 इनटू a इनटू 2b। अब अगर मैं फर्स्ट टर्म का रूट और सेकंड टर्म के रूट का अगर ट्वाइस मिडिल टर्म आती है, देखिए यहाँ 2 2 जा 4 ab, इसका मतलब क्या है कि a प्लस 2b का ये होल स्क्वायर है। यूजिंग आइडेंटिटी देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर मींस ये फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है? ये ट्राइनोमाइल स्क्वायर है। ट्राइनोमाइल स्क्वायर है किसका? a प्लस 2b के होल स्क्वायर का। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये ट्राइनोमाइल स्क्वायर है या नहीं है? तो देखो 4x स्क्वायर का ये फर्स्ट टर्म है और ये अपनी लास्ट टर्म है, ये मिडिल टर्म है। अब अपन क्या करेंगे? 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? देखा 4 का रूट तो 2x स्क्वायर का x, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर, बीच में माइनस आ रहा, तो अगर ये दो टर्म के डिफरेंस का होल स्क्वायर है तो क्या लिखूंगा? -2 तो आएगा इनटू फर्स्ट टर्म दैट इज 2x इनटू 1। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 x, ये आ रहा 4x। इसका मतलब क्या है? देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, यहां माइनस आ रहा है तो 2x - 1 का मैं होल स्क्वायर लिख दूंगा। सो अगेन दिस इज ट्राइनोमाइल स्क्वायर किसका? टू टर्म के डिफरेंस का स्क्वायर है ये, दैट व्हाई इट इज ट्राइनोमाइल स्क्वायर। सो क्वेश्चन इज क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 इज 36p स्क्वायर माइनस 60pq प्लस 25q स्क्वायर। अब देखिए इज इट ट्राइनोमाइल स्क्वायर? तो अपन क्या करेंगे? पहली टर्म का स्क्वायर रूट में 36 का रूट क्या होता है? 6, p स्क्वायर का p, तो इसको मैं 6p का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। 25q स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 5q का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और लास्ट टर्म का स्क्वायर हो गया। फर्स्ट टर्म और इसको मैं फर्स्ट टर्म मानूं, इसको सेकंड। अब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ट्वाइस विथ नेगेटिव साइन अगर मिडिल टर्म है तो ये दो टर्म के डिफरेंस का होल स्क्वायर होगा। तो देखिए -2 इनटू पहली टर्म क्या थी? 6p, दूसरी टर्म क्या थी? 5q, मल्टीप्लाई करो 5 6 जा 30, 32 जा 60pq, ये 60pq आ रहा है विद माइनस साइन, इसका मतलब ये 6p माइनस 5q का होल स्क्वायर है। ओके, दिस इज द फैक्टराइजेशन।
ओके, समझ में आ रहा है आपको? इट इज क्लियर और नॉट? देन क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is x square minus 2xy minus y square. ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है. देखो फर्स्ट टर्म x है उसका होल स्क्वायर है, फिर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म माइनस ऑफ सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर. अगर यहां ये प्लस होता, क्या होता? प्लस होता, तो ये x माइनस y का होल स्क्वायर. दिस इज नॉट ए ट्राइनोमाइल, not a trinomial square. समझ में आ रहा है आपको? अगर यहां पर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर होता तो ये x माइनस y का होल स्क्वायर बन जाता. ठीक है, सो दिस इज नॉट ए ट्राइनोमाइल स्क्वायर. सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज 49y स्क्वायर माइनस 14y प्लस ऑफ 1. आप देखिए इसको क्या ले सकते हैं? 49y स्क्वायर को 7y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7y इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर. देखो कंपेयर करेंगे अपन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर. किसके बराबर होता है? ये a माइनस b का होल स्क्वायर होता है. ये आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी के सिमिलर है ये, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं? 7y माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो ये ट्राइनोमाइल स्क्वायर है. इट इज ए ट्राइनोमाइल स्क्वायर. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज लाइक इट, share it and subscribe it. In next video we will do question number 6 onward. Thank you.